Ji, Assalamu alaikum everyone. This is Dr. Ahmed Hassan, and I'm the Chief Mentor and Program Head for FCPS Part 1 program that is being implemented and being followed by MedExam Expert and the Study Mate. I, on the behalf of MedExam Expert and the Study Mate, welcome all of you to this FCPS 1 free webinar week. We have mentors that will be sharing their knowledge with you guys in this whole webinar week during this blessed month of Ramadan. And most of the sessions have been planned at about 9 p.m. The whole schedule has already been shared on multiple platforms, and we will continue doing such activities for to help multiple students regarding their studies. So the first phase of this webinar will include the topic that we are currently discussing, and the second phase will include the details of the course that we actually run, and almost 1,200 students have already benefited from our courses. So without wasting any further time, let me start with the topic of discussion that is under review. So we will be discussing today the neurodegenerative disorders. The basic thing about FCPS Part 1 is that your study should be exam oriented. That is how I am going to deliver this whole topic to you guys. The main thing regarding this topic is that the questions that have been asked earlier in the exam, that have been tested in CPSP, FCPS Part 1 exam, have been very specific, and specific buzzwords or buzz points basically help you diagnose the disease and reach to a conclusion that has been asked about it. इसी तरीके से आई विल बी डिस्कसिंग द न्यूरोडिजेनरेटिव डिसऑर्डर्स. हमारे पास 7 डिजीजेस हैं, ठीक है, जो कि न्यूरोडिजेनरेटिव डिसऑर्डर्स की हेडिंग के अंदर आती है. और अगर आप इसकी सारी इट्सी बिट्सी डिटेल्स में जाना शुरू कर देंगे, देन ऑब्वियसली देयर इज अ चांस दैट यू विल बी ऑल एट सी. इसीलिए आई विल बी गाइडिंग यू एंड हेल्पिंग यू फिगर आउट कि आपने किस तरीके से ये चीजें याद करनी है. There are certain mnemonics, there are certain things that can help you memorize these diseases. So let me start. सबसे पहले तो मैं शुरू करूंगा पार्किंसन से. पार्किंसंस डिजीज. अब पार्किंसंस डिजीज सबको पता है कि बेसिकली ट्रेमर्स होते हैं इसमें, ठीक है, लेकिन इसमें जो आपने चीजें याद रखनी है, there is a single mnemonic that can help you understand this disease and that can help you figure out the answers to the questions that have been asked. अगर आप ये लेक्चर सही तरीके से सुन लेते हैं, उसके साथ आप राबिया अली कर लेते हैं, then you will be good to go. The mnemonic is P D A C M L. PDACML. P से आपने याद रखना है कि that this mnemonic is for Parkinson's disease. D से आपने याद रखना है कि there is decreased dopamine. Parkinson's के अंदर there is destruction of the dopaminergic neurons. ये आपको सबको पता है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो dopaminergic neurons की destruction है, it is at the level of substantia nigra. ये सारे MCQs हैं जो मैं लिख रहा हूं यहाँ पे. ए से आपने याद रखना है कि it is age related, मतलब कि it occurs mostly in older people, ठीक है. So there is increased chance in older people of Parkinson's disease, ठीक है. सी से आपने क्या याद रखना है? सी से यू विल रिमेंबर कॉम्टापून, यानी कि इसकी अब ट्रीटमेंट में जो ड्रग्स दिए जाते हैं ना, वो 2 मेन है.
एक है कॉम्ट इनहिबिटर्स, एक है एमएओ इनहिबिटर्स। इनकी डिटेल्स में मैं जानना चाहूँ तो मैं आपको वो भी पढ़ा सकता हूँ, लेकिन वी विल स्टिक टू व्हाट इज बीइंग आस्क्ड एंड व्हाट इज एग्जाम ओरिएंटेड। कॉम्प्टापोन से आप याद रखेंगे, COMT से कॉम्ट इनहिबिटर्स, उनके एंड पे नाम के आता है अपोन, जैसे एंटोकापोन या फिर टोल्कापोन। यानी कि अगर वो आपसे मैकेनिज्म ऑफ एक्शन पूछ लेते हैं और एंड पे ड्रग के पोन लिखा हुआ है तो इट इज अ कॉम्ट इनहिबिटर, ठीक है। फिर एक आ जाता है निमोनिक में, एम जो है इट स्टैंड फॉर माओ जीलीन। यानी कि अगर एक ड्रग है जिसके एंड पे जीलीन आता है, इट इज एन MAO इनहिबिटर, ठीक है। यानी कि अगर जैसे फॉर एग्जांपल सिलेजिलीन है, तो अगर वो सिलेजिलीन का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन आपसे पूछ लेते हैं, देन इट विल बी MAO inhibitors. And last thing that you need to memorize in this mnemonic is Lewy bodies. Lewy bodies basically क्या होती हैं? Lewy bodies are intracellular eosinophilic bodies of alpha synuclein. ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, alpha synuclein. So this is a basic mnemonic of Parkinson's disease, जिसमें बेसिकली आपका डोपामिनर्जिक न्यूरॉन्स का लॉस हो जाता है और उसकी वजह से ऑब्वियसली आपकी जो एक इनहिबिटरी एक्शन है इट इज फिनिश्ड, जिसकी वजह से ट्रेमर शुरू हो जाती है। अब अगर क्लिनिकल फाइंडिंग्स की बात करते हैं ऑफ पार्किंसंस, सो देयर इज एन अदर निमोनिक दैट इज ट्रैप्स, TRAPS, ट्रैप्स। टी जो है वो स्टैंड करता है फॉर ट्रेमर्स। और ट्रेमर्स कौन से होते हैं? इसमें पिल रोलिंग ट्रेमर्स होते हैं। आर जो है इट स्टैंड्स फॉर रिजिडिटी। इसमें रिजिडिटी कौन सी होती है? इट इज कॉग व्हील रिजिडिटी। ए से आ जाता है एकाइनेसिया, यानी कि देयर इज प्रॉब्लम व्हाइल डूइंग सर्टेन वर्क, ठीक है। और बेसिकली जो जिस इंसान को पार्किंसंस होगी, ही और शी विल बी स्लो इन हिज वर्क। जो भी वो एक्टिविटी कर रहे होंगे उसमें वो स्लो होंगे। टी से आ जाता है देयर इज पोस्चरल इंस्टेबिलिटी। और एस से आ जाता है देयर इज शफलिंग gait. So basically, these are the clinical findings of Parkinson's disease. ठीक है, ट्रैप्स इज द निमोनिक। बेसिकली अगर आपको एक ओल्ड बंदा ट्रेमर्स, पिल रोलिंग ट्रेमर्स, कॉगव्हील रिजिडिटी, एकाइनेसिया, पोस्टल इंस्टेबिलिटी और शफलिंग गेट के साथ मिलता है, यू विल थिंक ऑफ पार्किंसंस। और पार्किंसंस में डोपामिन जो है वो कम होता है, एसिटाइलकोलिन ऑब्वियसली ज्यादा होगा। आप ए से यहाँ पे एक और चीज याद रख सकते हैं कि एसिटाइलकोलिन इज मोर, ऑब्वियसली क्योंकि इनहिबिटरी इफेक्ट खत्म हो गया तो एसिटाइलकोलिन ज्यादा एक्ट करेगा, ठीक है। तो एज रिलेटेड है, सब्सटेंशिया निग्रा की डोपामिनर्जिक न्यूरॉन्स की जो है वो डिस्ट्रक्शन है, एसिटाइलकोलिन का एक्शन ज्यादा है। इसको ट्रीट करने के लिए आप कॉम्ट इनहिबिटर्स देते हैं जिनके एंड पे अपोन आता है, एमएओ इनहिबिटर्स देते हैं जिनके एंड पे जिलीन आता है जैसे लेजिलीन। और जब आप देखते हो तो इसमें लुई बॉडीज होती हैं दैट आर बेसिकली इंट्रासेलुलर इओसिनोफिलिक बॉडीज ऑफ अल्फा साइनुक्लिन। ये सारी की सारी चीजें जो मैंने यहाँ पे लिखी हैं, दे हैव बीन आस्क्ड इन वन वे और अनदर। अगर आपको ये चीज याद है, आपकी पार्किंसंस डिजीज तैयार है। यहां तक क्लियर हो गया है?
लेट टेल मी, मैं फिर आगे चलता हूँ हंटिंगटन डिजीज की तरफ। क्लियर। ठीक है, नाउ आई विल मूव टुवर्ड्स द हंटिंगटन डिजीज। अब हंटिंगटन डिजीज, इसका दूसरा नाम जो ज्यादातर सुनने में आता है, इट इज हंटिंगटन कोरिया, एज यू वुड नो। अब हंटिंगटन्स के लिए the mnemonic that I already remember and always use is M caged, CAGED। M से क्या याद रखना है? M will help you remember the clinical findings of Huntington's chorea। M से आपने याद रखना है मूड, मेमोरी एंड मूवमेंट। यानी कि एक और चीज आपने यहाँ पे याद रख लेनी है कि इट अकर्स मोस्टली इन एजेस ऑफ 20 to 50 years old। ठीक हो गया? तो अगर एक 20 to 50 ईयर ओल्ड वाला कोई इंसान आपके पास आता है एंड ही हैज प्रॉब्लम्स इन हिज मूड, मेमोरी एंड मूवमेंट, यू विल थिंक ऑफ हंटिंगटन्स कोरिया। मूड में क्या हो सकता है? द पर्सन कैन बी अग्रेसिव, ठीक है, साइकियाट्रिक इलनेस हो सकती है कोई, बिहेवियरल डिसफंक्शन हो सकता है कोई, और इवन डिप्रेशन भी हो सकती है। ठीक है, मेमोरी में ऑब्वियसली देयर विल बी प्रॉब्लम्स विद द मेमोरी, और मूवमेंट में आपको पता है कि रेपिटेटिव मूवमेंट्स होती है इसमें बार बार। ठीक है, इसलिए इसको कोरिया भी कहते हैं, हंटिंगटन्स कोरिया। ठीक है, इसका जो क्लिनिकल फाइंडिंग्स याद रखने का तरीका है, इट इज द लेटर एम, दैट इज मूड, मेमोरी एंड मूवमेंट इश्यूज। ठीक है, अब आगे केज्ड का क्या मतलब है? केज्ड का मतलब ये है कि देयर इज, एक तो आपने याद यहां पे ये रख लेना है कि कॉर्डेट की एट्रोफी होती है। ठीक है, उसके बाद एसिटाइलकोलिन इसमें कम हो जाता है एंड देयर इज एंटीसिपेशन। एंटीसिपेशन क्या होती है? एंटीसिपेशन होती है कि एक तो ये जाहिर बात है कि एक और मैं बताता हूँ, CAG जो है ना, ठीक है, इससे आपने एक और चीज याद रखनी है कि देयर आर बेसिकली ट्राई न्यूक्लियोटाइड रिपीट्स। ठीक है, CAG की। तो एंटिसिपेशन क्या होती है कि अगर एक इंसान को फैमिली के अंदर हंटिंगटन शो हो गई है 40 में, तो नेक्स्ट जनरेशन में वो 40 से पहले आ जाएगी, फॉर एग्जाम्पल 35 में, और फिर उससे नेक्स्ट जनरेशन में वो 35 से भी पहले आ जाएगी, फॉर एग्जाम्पल 30 में। दिस फिनोमेना इज नोन एज एंटिसिपेशन। ठीक है, जी से आपने याद रखना है कि इसमें गैबा कम होता है। ठीक हो गया? और ई से आपने याद रखना है कि देयर इज एक्सेसिव, बी से आ गया डोपामिन। तो बेसिकली अगर एक 20 to 50 ईयर ओल्ड वाला बंदा आपके पास आता है विथ प्रॉब्लम्स इन मूड, मेमोरी एंड मूवमेंट, ठीक है, तो उसमें आपने हंटिंगटन कोरिया सोचना है। वो होता क्यों है? क्योंकि CAG 20 रिपीट्स होती है, कॉर्डेट की एट्रोफी होती है, एसिटाइलकोलिन कम हो जाती है, गैबा कम हो जाती है, और डोपामीन एक्सेसिव हो जाती है। और एंटिसिपेशन का जो फिनोमेना है, आई हैव एक्सप्लेन्ड इट टू यू। एम आई क्लियर विद दिस? चलिए, इतने सारे निमोनिक्स याद कैसे होंगे वैसे? टोटल 5 निमोनिक्स हैं, और ये मुझे अभी भी याद है कि मैंने एक दफा बैठ के याद किए थे, एंड आई हैव रिमेंबर्ड इट फॉर मोस्ट ऑलमोस्ट 2.5 years अभी तक। तो वन टाइम एफर्ट है, आपको एंड तक काम देंगे। उसके बाद आई एम मूविंग टूवर्ड्स द एल्जाइमर्स डिजीज। एल्जाइमर्स का ऑब्वियसली एल्जाइमर्स शुरू ए से हो रहा है, तो इसका सब कुछ ए से ही होगा।
ए से आप याद रखेंगे दिस इज अबाउट अल्जाइमर्स डिजीज। उसके बाद इट अकर्स इन एजेड पीपल, एपीपी रिलेटेड होती है। एपीपी इज अ प्रोटीन, ठीक है, दैट इज प्रेजेंट ऑन क्रोमोसोम नंबर 21। यानी कि अगर क्रोमोसोम नंबर 21 पे है तो व्हाट स्ट्राइक्स यू एकदम, डाउन सिंड्रोम के अल्जाइमर्स की एसोसिएशन है विद डाउन सिंड्रोम। जो डाउन सिंड्रोम वाले पेशेंट्स हैं उनमें अल्जाइमर्स पहले आ जाती है एज कंपेयर टू द नॉर्मल पॉपुलेशन। ठीक हो गया। फिर आ गया देयर इज एट्रोफी ऑफ द सेरिब्रम, क्योंकि इसमें सेरिब्रल कॉर्टेक्स की एट्रोफी होती है। आपकी जो सेरिब्रल कॉर्टेक्स है वो छोटी हो जाती है, दैट इज व्हाई देयर इज प्रॉब्लम विद द मेमोरी, डिमेंशिया होता है। ठीक है, साथ ही साथ इसमें अल्फा बीटा अमाइलॉइड प्लेक्स आ जाते हैं, और साथ ही साथ एग्रीगेट्स ऑफ टाउ प्रोटीन्स। अब ये टाउ प्रोटीन्स आपने याद रखनी है, ये थोड़ा सा एक फर्क हो जाता है फ्रॉम द होल निमोनिक। टाउ प्रोटीन्स इसलिए इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि आगे जाके मैं आपको भी फ्रंटो टेम्पोरल डिमेंशिया भी पढ़ाऊंगा। फ्रंटो टेम्पोरल डिमेंशिया में राउंड टाउ प्रोटीन्स होती हैं, एल्जाइमर्स में नॉर्मल टाउ प्रोटीन्स होती हैं। ये चीज याद रखने वाली है। ये एमसीक्यू में अगर उन्होंने घुमाना होगा तो वो इस पॉइंट पे घुमाएंगे। ठीक है, इसके बाद इसमें एसिटाइल कोलिन हो जाती है कम। ठीक है, और इसकी जो कंफर्म डायग्नोसिस होती है इट इज ऑन ऑटोप्सी। बाकी दो और प्रोटीन्स आ जाती हैं इसमें, दैट इज ApoE2 एंड ApoE4। ApoE2 basically decreases the risk of Alzheimer's and ApoE4 increases the risk of Alzheimer's। ठीक है, तो बेसिकली अगर आपके पास एक एल्डरली बंदा आता है जिसमें सिर्फ और सिर्फ मेमोरी लॉस है, सिर्फ और सिर्फ डिमेंशिया है, then you will think of Alzheimer's disease that occurs in aged people. It is APP related, chromosome 21 पे जो प्रोटीन होती है, so it has a strong association with Down syndrome. There is atrophy of cerebrum, that is why dementia is the major feature of this disease. अल्फा बीटा अमाइलॉइड प्लेक्स आ जाते हैं, एग्रीगेट्स ऑफ टॉप प्रोटीन्स आ जाती हैं, एसिटाइल कोलिन कम होती है। इट इज डायग्नोस्ड ऑन ऑटोप्सी। जो बेस्ट चीज है इसकी डायग्नोसिस के लिए दैट इज ऑटोप्सी, मतलब कि पोस्टमार्टम पे ही डायग्नोसिस होती है। दो प्रोटीन्स हैं ApoE2 एंड ApoE4। ApoE2 बेसिकली डिक्रीजेस द रिस्क ऑफ हैविंग अल्जाइमर्स एंड ApoE4 इंक्रीजेस द रिस्क ऑफ हैविंग अल्जाइमर्स। ये सारे के सारे एमसीक्यूज में पूछी गई ये चीजें किसी ना किसी तरीके से आई हुई है। Am I clear with this? Yes, sir. अब हम आगे चलते हैं टूवर्ड्स फ्रंटोटेम्पोरल डिमेंशिया। अब नाम ही आपसे नाम से ही समझ लग रही है ये फ्रंटो टेम्पोरल डिमेंशिया, यानी कि फ्रंटल और टेम्पोरल लोब की इन्वॉल्वमेंट है। ये तो हो गई पक्की बात। ठीक है, इसमें क्या होगा कि पहले बिहेवियरल चेंजेस आएंगी, उसके बाद डिमेंशिया सेट इन हो जाएगा। बल्कि इसमें टेम्पोरल भी है ना, तो लैंग्वेज चेंजेस भी। फ्रंटो टेम्पोरल डिमेंशिया, फ्रंटोटेम्पोरल फ्रंटल लोब और टेम्पोरल लोब इन्वॉल्वमेंट होगी, बिहेवियरल और लैंग्वेज चेंजेस आएंगी पहले, और बाद में डिमेंशिया सेट इन हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें आप देख रहे हैं कि ओ इज अ प्रोमिनेंट फीचर ऑफ दिस डिजीज। तो इसका मतलब है ओ से आपने याद रखना है कि देयर आर राउंड टाउ प्रोटीन्स। ठीक है, एम आई क्लियर विद दिस फ्रंटोटेम्पोरल डिमेंशिया। इसके बाद जब मैं स्पीड से रिव्यू करूंगा तो आपको याद हो जाएंगी चीजें। ये समझ लग के तो आगे चलूं। So I mean round tau proteins जो है abnormal है. जो नॉर्मल टाउ प्रोटीन्स है दे आर आल्सो एबनॉर्मल। ये एक पैथोलॉजिकल फीचर है
अगर नॉर्मल जो है टॉप प्रोटीन्स होती हैं जो राउंडेड फॉर्म में नहीं होती, लीनियर होती हैं, दे आर प्रेजेंट इन एल्जाइमर्स। अगर राउंडेड टॉप प्रोटीन्स हैं, दे आर प्रेजेंट इन फ्रंटोटेम्पोरल डिमेंशिया। ठीक है, एल्जाइमर्स में सिर्फ और सिर्फ डिमेंशिया होता है। जो काइंडली फ्रंटोटेम्पोरल अगर आप फर्स्ट डिमेंशिया, पॉइंट रिपीट कर दें, कौन से वाला? ये फ्रंटोटेम्पोरल का फर्स्ट पॉइंट। अच्छा, फ्रंटोटेम्पोरल डिमेंशिया, फ्रंटल लोब और टेम्पोरल लोब इन्वॉल्वमेंट है। अब फ्रंटल लोब आपको पता है कि इट इज इन्वॉल्व बेसिकली इन द बिहेवियरल थिंग्स। ठीक है, आपकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए फ्रंटल लोब इन्वॉल्व होता है। और टेम्पोरल लोब ऑब्वियसली इट प्लेज अ रोल इन अदर हायर मेंटल फंक्शंस। ठीक है, तो अगर फ्रंटोटेम्पोरल डिमेंशिया है तो फिर पहले बिहेवियरल चेंजेस आएंगी और लैंग्वेज चेंजेस आएंगी, यानी कि एफेजिया की तरफ जा सकता है बंदा, और उसके बाद अल्टीमेटली डिमेंशिया एस्टेब्लिश होगा। इसकी इंपॉर्टेंस आगे जाके आपको समझ लगेगी, क्योंकि जो वेस्कुलर डिमेंशिया है उसमें स्टेप वाइज डिक्लाइन होता है। बाकी ओ से आपने याद रखना है कि इस डिजीज में फ्रंटोटेम्पोरल डिमेंशिया में राउंड टॉप प्रोटीन्स होती है। क्लियर हो गया? क्लियर हो गया तो यस लिख दे, फिर मैं आगे चलता हूँ। ठीक है, अब हम चलते हैं जी लुई बॉडी डिमेंशिया की तरफ। अब लुई बॉडी डिमेंशिया को नाम से पता चल रहा है, इसमें लुई बॉडीज होंगी। इसको याद रखने का सिर्फ एक ही तरीका है, इसका नाम ही है हेल्यूसिनेशंस। कि डिमेंशिया होगा जिसमें हेलुसिनेशंस होंगी। अगर डिमेंशिया के साथ हेलुसिनेशंस हैं, दिस मींस दैट वी आर टॉकिंग अबाउट लुई बॉडी डिमेंशिया। क्लियर हो गया? ये सिर्फ एक बस वर्ड्स हैं, यही पूछे जाते हैं बार बार। उसके बाद आ जाता है आपके पास वेस्कुलर डिमेंशिया। वेस्कुलर डिमेंशिया, वेस्कुलर डिमेंशिया में क्या होता है कि देयर इज अ स्टेप वाइज डिक्लाइन। स्टेप वाइज डिक्लाइन होता है क्योंकि मल्टीपल, नाम से पता चल रहा है ना कि कोई ना कोई मसला वेसल्स के साथ है। देयर आर मल्टीपल आर्टीरियल इनफार्क्ट्स, उसकी वजह से देयर इज अ स्टेप वाइज डिक्लाइन। ठीक है, इसमें जैसे कि मैंने आपको बताया है कि इसमें सबसे पहले जो चीज जाएगी ना, इट इज कॉग्निशन। ठीक है, उसके बाद फिर आएगा डिमेंशिया। ठीक हो गया? मतलब कि स्टेप वाइज डिक्लाइन है इन द एबिलिटीज ऑफ अ पर्सन। सबसे पहले जाती है कॉग्निशन, उसके बाद जाती है आपके पास जो है मेमोरी। एम आई क्लियर विद दिस? सर विच आर्टरी इन्फार्क्टेड होगी? आर्टरी कोई भी इन्फार्क्ट हो सकती है। आर्टरीज जो है वो ऑब्वियसली डिफरेंट लेवल्स की होती है ना। ठीक है, तो जो सर्कल ऑफ विले से ऑब्वियसली आपकी निकल रही हैं सारी की सारी आर्टरीज, उधर कहीं पे इन्फार्क्ट आ सकता है। जो छोटी आर्टरीज होती हैं जो आगे स्मॉलर एरिया से सप्लाई कर रही है ब्रेन को, तो उसकी एक डिफरेंट लोकलाइज्ड आर्टरीज भी इन्फार्क्ट हो सकती हैं। देयर इज नॉट अ स्पेसिफिक पैटर्न दैट हैज बीन डिस्कस्ड और डिस्क्राइब्ड। लेकिन अगर एक किसी इंसान की इंटेलेक्चुअल एबिलिटी में स्टेप वाइज डिक्लाइन आ रहा है कि फॉर एग्जांपल पहले वो एक चीज मतलब कि फॉर एग्जांपल पहले वो सुन नहीं सक रहा था, आहिस्ता आहिस्ता वो बोलना बंद हो गया, आहिस्ता आहिस्ता वो समझना बंद हो गया, उसके बाद वो भूलना शुरू हो गया, तो इसका मतलब है देयर इज अ स्टेप वाइज डिक्लाइन ऑफ थिंग्स। सो दिस विल पॉइंट टुवर्ड्स वेस्कुलर डिमेंशिया। कॉग्निशन बेसिकली होती है कि बेसिकली जो थॉट एक्वायरिंग प्रोसेस होता है कि जब आप कोई नॉलेज गेन कर रहे होते हो, दैट इज कॉग्निशन, एबिलिटी टू इंटरप्रेट थिंग्स। क्लियर हो गया? क्लियर हो गया तो आगे चले। लास्ट यस डिजीज सर, है, आगे चलिए। लास्ट डिजीज जो है वो है आपकी क्रुट्सफेल्ड
जेकब डिजीज, इसका ना इजी नाम जो है ना वो है मैड काउ डिजीज। मैड काउ डिजीज ये बहुत ही कॉमन थी, मतलब कि इन द अर्ली 90s, इन द लेट 90s, बल्कि बहुत ज्यादा इसके इसके बारे में खबरें भी आती थी। इसका दूसरा नाम जो है बोवाइन स्पॉन्जीफॉर्म एन्सेफेलोपैथी। अगर याद रखना तो आप रख सकते हैं, बोवाइन स्पॉन्जीफॉर्म एन्सेफेलोपैथी। ठीक है, होता क्या है इसमें, अगर एक इंसान को डिमेंशिया है यानी कि मेमोरी लॉस है, साथ मायोक्लोनस है। मायोक्लोनस बेसिकली एक क्विक मूवमेंट होती है, क्विक जर्की मूवमेंट को मायोक्लोनस कहते हैं। तो अगर एक इंसान जो है उसको मेमोरी के इश्यूज हैं और उसके बाद एक सडन मस्कुलर स्पैज़म आता है किसी चीज का, दैट इज अ मायोक्लोनस। तो यू विल थिंक ऑफ क्रिट्सफील्ड जेकब डिजीज, दैट इज द मैड काउ डिजीज। इसमें दो चीजें याद रखनी है आपने, एक है प्रायोन्स, प्रायोन्स होते हैं इसमें, और CSF के अंदर एक प्रोटीन होती है दैट इज 14-3 प्रोटीन इन CSF, ये ज्यादा होती है। Am I clear with this? So this is the whole topic about the neurodegenerative disorders. मैं एक दफा सर ये स्पीड से मैड काउ डिजीज समझ नहीं आई मुझे थोड़ी सी। सॉरी, सर ये मैड काउ डिजीज अगर डिमेंशिया एक दफा फिर रिपीट कर दें आप। अच्छा, मैड काउ डिजीज में बेसिकली ये है, चलो मैं खोल भी लेता हूँ, बोवाइन स्पॉन्जिफॉर्म एन्सेफेलोपैथी। इसमें होता क्या है बेसिकली कि प्रायोन्स एक पैथोलॉजिकल चीज है दैट आर नॉट ऑलवेज प्रेजेंट। ठीक है, इसमें अगर एक इंसान को डिमेंशिया है यानी कि मेमोरी के इश्यूज हैं, साथ एक सडन जर्की या स्पास्मोडिक मूवमेंट होती है किसी भी मसल के ग्रुप की, उसको हम मायोक्लोनस कहते हैं। ठीक है, तो यू विल थिंक ऑफ क्रुट्सफील्ड जेकब या मैड काउ डिजीज, या इसका तीसरा नाम है बोवाइन स्पॉन्जिफॉर्म एन्सेफेलोपैथी। ठीक है, सर इसको मैड काउ कहने का कोई रीजन होगा ना, मतलब काउ रिलेटेड कुछ है, बोवाइन रिलेटेड कुछ है, तो हाँ व्हाट्स द इसमें रीजन? जहाँ तक मुझे पता है, ठीक है, कि दिस डिजीज वाज फर्स्ट डिस्कवर्ड इन द काउज, इसीलिए जो है उन्होंने मैड को कर दिया। और सर ये प्रियॉन्स क्या है, प्लीज रिपीट करेंगे आप? प्रायोन्स बेसिकली ना एक एग्रीगेशन होती है प्रोटीन्स की, ठीक है, विद इन द ब्रेन। जैसे कि आपको टाउ प्रोटीन्स बताया है, जैसे मैंने आपको बताया ना अल्फा साइन्यूक्लियन होती है, अल्फा साइन्यूक्लियन आपको याद होगा, भी मैंने बताया आपको, जैसे लुई बॉडीज हैं, यस सर। लुई बॉडीज अल्फा साइन्यूक्लियन है ना, वैसे ही बीटा फॉर्म जो है, बीटा प्लेटेड शीट्स की फॉर्म एक होती है, जब उस तरीके से प्रोटीन्स एग्रीगेट होती हैं उसको हम प्रायोन्स कह देते हैं, वो इसमें होती है। क्लियर सर। ठीक है, और इसमें एक प्रोटीन है 14-3-3, ठीक है, ये इसको आप रट्टा लगा लें, ये एक दो दफा आया हुआ है पेपर में कि कौन सी प्रोटीन ज्यादा होती है इन CSF, इन मैट क्रुट्सफील्ड जेकब डिजीज। मैट का तो नहीं आता, ये लिखा आता है बार बार, इट इज 14-3-3। ठीक है, ओके सर। अब मैं इनको फटाफट रिव्यू कर देता हूँ पूरे को, और उसके बाद फिर क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। तो बेसिकली न्यूरोडीजेनरेटिव डिसऑर्डर्स जो हैं, ठीक है, इसके आपको बज़वर्ड्स और निमोनिक्स याद होने चाहिए। सिंपल है, पार्किंसंस का PDA CML है, और इसकी क्लिनिकल फाइंडिंग्स के लिए ट्रैप्स है। ठीक है, इससे आपको इजीली समझ लग जाती है कि इसमें डोपामिन कम है, एसिटाइलकोलिन ज्यादा है, एज रिलेटेड है, कॉम्टापोन माउजिलिन, इसका ट्रीटमेंट समझ लग जाता है, और लुई बॉडीज अल्फा साइन्यूक्लिन के एग्रीगेट्स होते हैं। ट्रैप्स जो है इसका निमोनिक है फॉर क्लिनिकल फाइंडिंग्स, ट्रेमर, रिजिडिटी, एकाइनेसिया, पोस्चर इंस्टेबिलिटी और शफलिंग गेट। उसके बाद हम हंटिंगटन स्कोर यहाँ पे आते हैं, तो इसका सिंपल निमोनिक है MKH। ठीक है, 20 to 50 ईयर ओल्ड में आ जाते हैं। मूड, मेमोरी और मूवमेंट के डिसऑर्डर्स अगर हो, और CAG ट्राइन्यूक्लियोटाइड रिपीट्स हो, कॉर्डेट की एट्रोफी होती है, एसिटाइलकोलिन कम होता है, एंटिसिपेशन मैंने आपको बता दी है कि नेक्स्ट जनरेशन में पहली जनरेशन से पहले आने लग जाती है, गैबा इसमें कम होता है, और डोपामिन इसमें ज्यादा होता है। ये जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि इसमें न्यूरोट्रांसमीटर्स किस तरीके से होते हैं। एल्जाइमर जो है एजेड पीपल में होती है, APP रिलेटेड होती है, 21st क्रोमोसोम के साथ एसोसिएटेड होती है, इसलिए डाउन
सिंड्रोम के साथ बहुत स्ट्रॉन्ग एसोसिएशन है। सेरिब्रम की एट्रोफी होती है, अल्फा बीटा एमाइलॉइड प्लेक्स होते हैं और टॉप प्रोटीन्स होती हैं। एसिटाइलकोलिन इसमें कम होता है। ऑटोप्सी से हम देखते हैं E2 जो है इसमें प्रोटीन का रिस्क, प्रोटीन अगर E2 होगी तो एल्जाइमर्स का रिस्क कम करती है, E4 होगी तो रिस्क ज्यादा हो जाता है। इसी तरीके से फ्रंटोटेम्पोरल डिमेंशिया की तरफ चलते हैं तो नाम से पता चल रहा है फ्रंटोटेम्पोरल बिहेवियरल और लैंग्वेज के मसले होंगे, उसके बाद डिमेंशिया अगर एस्टेब्लिश होता है यू विल थिंक ऑफ फ्रंटोटेम्पोरल डिमेंशिया। ओ है तो इससे आपको याद रह जाएगा कि राउंड टॉप प्रोटीन से। फिर लुई बॉडी डिमेंशिया में आपने याद रखना है हेलुसिनेशन से, यही निमोनिक है, यही नाम है। हेलुसिनेशंस होती हैं, साथ डिमेंशिया होगा तो लुई बॉडी डिमेंशिया। अगर वेस्कुलर डिमेंशिया होगा उसमें स्टेप वाइज डिक्लाइन होता है, मल्टीपल आर्टीरियल इन्फार्क्ट होते हैं, पहले कॉग्निशन डिक्लाइन होती है, बाद में डिमेंशिया एस्टेब्लिश होता है। उसके बाद आ जाती है क्रुट्सफेल्ड जेकब डिजीज, दैट इज बोवाइन स्पॉन्जिफॉर्म एन्सेफेलोपैथी, जिसमें डिमेंशिया होगा, साथ एक सडन जर्की मूवमेंट होगी, बायोक्लोनस, ठीक है। इसमें आपने प्रायोन्स याद रखने हैं और 1433 प्रोटीन याद रखनी है इन द CSF। Am I clear with this? यस सर। लेक्चर तो हमारा यहाँ तक ही था एंड आई होप कि आपका ये टॉपिक अच्छे तरीके से तैयार हो गया होगा। व्हाट यू गाइस नीड टू मेक श्योर इज दैट कि आप लोगों ने लाजमी ये टॉपिक अब इसी टाइम पे राबिया अली से MCQs कर लेने हैं, ठीक है। वंस डन। यू आर डन विद द MCQs ऑफ राबिया अली, अभी कर ले, ठीक है, तो आपका ये टॉपिक पक्का तैयार हो जाएगा, कुछ पीछे रह नहीं जाएगा, ठीक है। सेकेंडली हमारा अपना जो कोर्स है वो शुरू हो रहा है अगस्त अटेम्प्ट के लिए फ्रॉम 1 मई। सीट्स आर लिमिटेड एंड द रजिस्ट्रेशंस हैव ऑलरेडी स्टार्टेड। हमारा जो तरीकेकार होता है पढ़ाने का वो 3 मंथ्स का पूरा कोर्स होता है एंड वी प्रिपेयर स्टूडेंट्स फॉर मेडिसिन, सर्जरी, रेडियो, गायनी ऑब्स, आई, ENT, डेंटिस्ट्री, और अगर आप एनेस्थीसिया, साइकेट्री या पैथो के लिए भी जा रहे हैं देन यू कैन आल्सो जॉइन अस फॉर द जेनेरिक प्रिपरेशन। हम लोग बेसिकली लेक्चर्स हमारे प्री रिकॉर्डेड होते हैं, तो लेक्चर्स आर अवेलेबल विद यू 24/7। उसके साथ साथ द डिस्कशन ऑलवेज अकर्स ऑन द टेलीग्राम ग्रुप्स। टेलीग्राम ग्रुप्स के ऊपर हमारे मेंटोर्स आर 24/7 अवेलेबल। You can post your queries and questions at any time of the day and we will be there to answer them. ऑब्वियसली रात के 5-6 घंटे होते हैं जिसमें हम अवेलेबल नहीं होते, आजकल तो उसमें भी वैसे अवेलेबिलिटी हो जाती है क्योंकि रमजान है तो जाग ही रहे होते हैं, लेकिन तो वरना सर ये जो है वो आपकी मतलब ये क्लासेस किस तरह होंगी, हम ज्वाइन हम कर तो लेंगे, मतलब क्लास का कोई टाइम होगा, मतलब क्या है ये हमें तो समझ में नहीं आ रहा। अगर आप इसके बारे में गाइड कर देते थोड़ी सी वीडियो बना के तो हम ज्वाइन करने में मतलब हो जाता थोड़ा। जी जी मैं आपको समझा भी देता हूँ, मैं वीडियो भी बना दूंगा जल्दी इंशाल्लाह। तो बेसिकली होगा इसमें ये कि फ्रॉम द डे 1 आपको एक स्केड्यूल प्रोवाइड कर दिया जाएगा कि आपने क्या चीज किस दिन करनी है, ठीक हो गया। सही है। साथ ही साथ आपको एक फेसबुक ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा और एक टेलीग्राम ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा और आपका अकाउंट बनवा दिया जाएगा मेड एग्जाम एक्सपर्ट की वेबसाइट पे। सही। जब ये हो जाएगा उसके बाद आपको स्केड्यूल के लिहाज से एक्सेस दिया जाएगा प्री रिकॉर्डेड लेक्चर्स का ऑन मेड एग्जाम एक्सपर्ट्स वेबसाइट। अगर 3 दिन हमने CVS को दिए हैं, आप लोग उन 3 दिनों में वो लेक्चर सुनेंगे। लेक्चर्स जो हैं वो सारी इंपॉर्टेंट चीजें कवर कर रहे हैं, जिस तरीके से मैंने आपको आज पढ़ाया है इसी तरीके के हमारे लेक्चर्स हैं, ठीक है। एक एक चीज उसमें समझाई जाती है जो इंपॉर्टेंट है एग्जाम ओरिएंटेशन के लिहाज से। एक्स्ट्रा डिटेल्स में हम जान के नहीं गए बिकॉज वी नीड टू कंप्लीट थिंग्स इन दिस 3 months टाइम। आप वो लेक्चर सुनोगे, आप वो चीज बुक से रीड करोगे, आप FCPS मेट पढ़ोगे और साथ राबिया अली से MCQs करोगे, ठीक है। बुक्स बीच में चेंज होती जाएंगी अकॉर्डिंग टू द थिंग दैट यू आर स्टडिंग। जैसे ऑर्गन सिस्टम के लिए फर्स्ट एड और BRS फिजियोलॉजी उठा रहे होगे, आप पैथो के लिए जनरल पैथो उठा रहे होगे, जनरल पैथो के लिए, ठीक है, BRS पैथोलॉजी उठा रहे होगे, आप एनाटॉमी के लिए स्नेल्स एनाटॉमी रिव्यू, ये सारी चीजें आपको बताई जाएगी जॉन जॉन सी अपने बुक्स तो पढ़नी है। सर ये जो जैसे स्पेशलिटी के हिसाब से ही होगा ना, जैसे कि किसी बंदे ने मेडिसिन जाना है या रेडियो जाना है तो वो ग्रुप्स और वो सब चीजें अलग ही बताई जाएंगी ना। नहीं मैं आपको मतलब बताता हूँ, मेडिसिन, सर्जरी, रेडियोलॉजी, गायनेकोलॉजी, ठीक है, इन चारों की तैयारी इफेक्टिवली एक ही है। द डिफरेंस लाइज के गायनी में आपने पेल्विस ज्यादा डिटेल में करना होता है और हम वो करवाते हैं एंड में जाके, लेकिन इंपॉर्टेंट बात ये है कि इफ यू आर अपेयरिंग फॉर एनी स्पेशलिटी
उसमें यू कैन नॉट लीव अदर थिंग्स डन इन अ लेस डिटेल्ड मैनर। आपने एक ही तरीके से करनी है सारी चीजें। अगर आप ENTI के लिए भी जा रहे हैं ना फॉर एग्जांपल, तो आप मेडिसिन, सर्जरी, रेडियो वगैरह वाली सारी चीजें करके जाओगे ENTI वाली चीजें करने। अगर आपकी वो वाली चीजें वीक रह जाती हैं, देन यू वोंट बी एबल टू क्लियर द एग्जाम, क्योंकि आपके कोई डिफिकल्टी लेवल उधर डिफाइंड नहीं है कि उन्हें किस डिफिकल्टी लेवल तक पूछनी है, या कोई स्पेसिफिक टेबल ऑफ स्पेसिफिकेशंस नहीं है। थैंक यू। सर kindly मीन्स हमें बता दें। प्री रिकॉर्डेड जो है वो लेक्चर सुनने हैं, बुक्स हमने खुद पढ़नी है, और आप जो है MCQs वगैरह करवाएंगे या क्या करवाएंगे आप लोग नहीं, टेलीग्राम ग्रुप के अंदर? उसमें बेसिकली ये होता है कि ड्यूरिंग दिस होल कोर्स ऑफ लिसनिंग टू द लेक्चर्स, गोइंग थ्रू द बुक्स एंड गोइंग थ्रू द MCQs ऑफ राबिया अली एंड गोइंग थ्रू FCPS NEET, इस पूरे कोर्स के दौरान आपको जहां पे भी कंफ्यूजन आती है, यू विल पोस्ट ऑन द टेलीग्राम ग्रुप। So you're gonna help through the group actually. एग्जैक्टली। सर हमें बताया था किसी ने कि लास्ट में MCQs बुक जैसे किम हो गई, तन्वीर, रफीउल्लाह, तो आप क्या रिकमेंड करते हैं वो नहीं करनी इन लोगों ने? नहीं, हम लोगों ने अपना एक प्रॉपर स्केड्यूल बनाया हुआ है एंड वी फॉलो दैट स्ट्रिक्टली। Obviously there are multiple books in the market and you cannot do all the books, so we have made a plan for us, and almost 1200 students have already passed through this plan, and we have already followed this plan since quite a while now. सर फिर हमें मतलब इराटा की जरूरत नहीं पड़ेगी राबिया अली के लिए? मैं हमें इराटा की जरूरत भी पड़ रही है हमें। इरेक्टा हम लोग इसलिए रिकमेंड नहीं करते, इसीलिए टेलीग्राम ग्रुप जो है हमारा बहुत एक्टिव होता है। हमारा टेलीग्राम ग्रुप जो है ना, इट इज स्ट्रिक्टली स्टडी ग्रुप, उस पर कोई और डिस्कशन नहीं होती। अगर आप एक MCQ वहां पे पोस्ट करते हैं अकॉर्डिंग टू दैट स्केड्यूल, इट विल बी आंसर्ड इन डिटेल। इरेक्टा हम लोग इसलिए नहीं उसको करते कभी भी रिकमेंड, स्पेशली दूसरी बुक्स के, क्योंकि उसके अंदर मसला ये आ रहा होता है कि आप फिर उसको रट्टा मारेंगे उस चीज को, तो ये MCQ ऐसे था जी, इसको रट लेते हैं। जब आप एक एक MCQ डिस्कस करते हो, ठीक है, और अगर फर्ज करें किसी और की कंफ्यूजन थी किसी एक MCQ में और किसी और ने वो पूछ लिया है, ठीक है, और आप उससे गो थ्रू कर जाते हो और वो उसका आंसर डिटेल में हुआ है, तो आपका वो पूरा टॉपिक तैयार हो जाता है इन अ स्पैन ऑफ 2 to 3 मिनट्स। और उसका फिर ये फायदा होता है कि CPSP ने जैसे फरवरी के अंदर ना अभी काफी ज्यादा चेंजेस आई थी पूल के अंदर, क्वेश्चंस डिफरेंट आए। CPSP का अपना रिजल्ट जो हमारे सुनने के मुताबिक है वो 10 to 15% से भी शायद नीचे था, लेकिन हमारे अपने स्टूडेंट्स का रिजल्ट 75% से ऊपर था। उसकी रीजन ही ये थी कि हम लोग एनकरेज करते हैं कोई नई चीज समझ लगी तो पूछें आप, लेकिन हाँ स्केड्यूल फॉलो करना है स्ट्रिक्टली, जो उसका टाइम डेजिग्नेटेड है उसमें ही पूछना है उस चीज के बारे में, ये इंपॉर्टेंट चीज है। सर आई हैव ऑलरेडी गॉन थ्रू BRS फिजियोलॉजी, उसके बाद मैंने राबिया अली की थी सर BRS फिजियोलॉजी के बाद, उसमें काफी सारे MCQs ऐसे थे जो डिबेटेबल थे, तो और मुझे काफी सारे ऐसे थे जो बुक में थे ही नहीं, टॉपिक कंसर्न थे ही नहीं, तो वो हमें कैसे श्योरिटी मिलेगी कि वो सही है या गलत है? वो फिर हमें 80% वैसे ही डिस्कस हो जाते हैं। बाकी जब आप लेक्चर सुनते हैं तो लेक्चर्स में जब आप गो थ्रू करोगे तो लेक्चर्स में आपको अंदाजा हो जाएगा। लेक्चर्स हमारे इसमें तो MCQ उस तरीके से पूछे नहीं गए थे, जैसे न्यूरोडिजेनरेटिव डिसऑर्डर्स की मैं बात करता हूँ। अगर मैं कोई और टॉपिक पढ़ाता यहाँ पे तो हमारे सारे टॉपिक्स जो हैं, जैसे कि एक अभी मैंने टॉपिक शेयर किया हुआ है ऑलरेडी, ठीक है, तो आप उससे गो थ्रू कर सकते हैं, वीडियोस जो अवेलेबल हैं स्टडी मेट के बेस पे। हमारे सारे टॉपिक्स जो लेक्चर्स बने हुए इस तरीके से बने हुए हैं कि फर्स्ट वी डिलीवर द कॉन्सेप्ट, देन वी गो थ्रू द बुक, एंड देन देयर इज अ वन लाइनर प्लेटफॉर्म जिसमें लिखी हुई है सारे MCQs वन लाइनर की फॉर्म में जो पूछे गए हैं, तो उससे आपकी एग्जाम ओरिएंटेशन सेट हो जाती है। जब आप MCQ कर रहे होते हैं तो आपको वो स्ट्राइक करती है चीज कि शायद ये गलत है, तो आप पूछ लेते हो और कोई ना कोई लाजमी पूछ लेता है। We have that experience with us. सर राबिया अली की चोरी नहीं करनी होती? नहीं, राबिया अली से सिर्फ और सिर्फ MCQs और कुछ भी नहीं। सर ये जो है कहते हैं कि राबिया अली जो है वो पुरानी हो गई तो मेडिकल आ गई है नई और उसमें एरर्स भी कम है, तो ये राबिया अली आप क्यों इतना वो मतलब प्रेफर कर रहे हैं, मेडिकल क्यों नहीं बता रहे? इसलिए प्रेफर करता हूँ क्योंकि मेडिकल के अंदर जो MCQs हैं दे हैव बीन चेंज्ड, ठीक है, एंड दे आर जी, जो राबिया अली के अंदर MCQs हैं, ठीक है, दे आर ऑथेंटिक इन द सेंस कि वो
प्योर रिकॉल्स हैं जैसे आए हुए हैं, ठीक है। तो अगर आप उन रिकॉल्स को उठा के उनके कोर कॉन्सेप्ट तक पहुंच जाते हैं, ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि दैट यू आर इन अ गुड शेप। लेकिन अगर आप एक ऐसी बुक करते हैं जिसके अंदर ऑप्शंस खुद से ऐड करके उसकी ऑथेंटिसिटी को खुद बनाया जा रहा है, आई डोंट थिंक दैट इज अ सेम चॉइस। अगस्त अटेम्प्ट के बाद सर कौन सा अटेम्प्ट है इसमें आप तैयारी स्टार्ट करवा देंगे? सॉरी मुझे समझ नहीं आई आपकी क्वेश्चन की। सर अगस्त अटेम्प्ट के लिए आप अभी मई में स्टार्ट करवाएंगे हाँ प्रिपरेशंस? जी, 3 मंथ्स का कोर्स है ना, मई जून एंड जुलाई 3 महीने तैयारी होगी। 10th एंड अगस्त आफ्टर अगस्त? एंड आफ्टर अगस्त? 10th उसके बाद तो फिर जो नेक्स्ट अटेम्प्ट है मेरा से प्रोबेबली इट इज इन नवंबर, राइट। या तो देखिए नवंबर में? schedule, तो जो नेक्स्ट अटेम्प्ट है उसके हिसाब से होगा। ओके ओके, थैंक यू। No issue. So these are our mentors that we have with us: Dr. Hamad Ayaz, Dr. Huma Mahmood, Dr. Sarish Nadeem, Dr. Muhammad Ali Khalid, Dr. Mohafiz Aslam, Dr. Taimur Zahid, and our social media coordinators. They are very active in our Telegram groups as well. Dr. Akif, Dr. Rimsha, जो अभी करवा भी रही हैं डिस्कशन आपकी of Gold 11 recalls, Dr. Sara Arshad, Dr. Rehan Yaqub, and the course is starting from 1st of May, and these are the registration details. अगर आपको कोई queries हैं तो you can ask, and we would really सर appreciate. आई हैव हर्ड कि आप एसके आप भी बोलते हैं कि थोड़ी सी पढ़ उसकी रिकॉल करने चाहिए एसके, तो व्हाट डू यू थिंक? हमारा जो प्रॉपर एक बना हुआ है, आप कह लें स्केड्यूल या एक प्रॉपर गाइडलाइन बनी हुई है, हम लोग रेकमेंड करते हैं कि जो फर्स्ट 6 गोल्डन फाइल्स हैं, अगर आप मेडिसिन के लिए जा रहे हो तो आप मेडिसिन के एसके वाले करोगे, अगर आप सर्जरी और रेडियो के लिए जा रहे हो तो आप उसके एसके वाले करोगे फर्स्ट 6, लेकिन 7 ऑनवर्ड्स वी स्टिक टू FCPS मेड गोल्ड रिकॉल सीरीज। ठीक है, am I clear with this? यस सर। कोई और क्वेश्चन सर क्वेरीज है तो आप। सर नेक्स्ट कोई फ्री वेबिनार हो रहा है? जी जी, मैं अभी वो बताने लगा उसके बारे में। This is the whole schedule for the free webinar week. कल Dr. Hamad Ayaz will be live inshallah at 9 p.m. again, explaining about the brachial plexus. ठीक है, फिर परसों डॉक्टर हुमा होंगी, पेरिकार्डियम के बारे में बताएंगी at 9 p.m. फिर पैरानेजल साइनस के बारे में डॉक्टर मोहफिज असलम, ENT वाले ये वाला जरूर अटेंड करें 9:15 p.m. पे। इसके बाद 23rd को डॉक्टर मोहम्मद अली खालिद होंगे, 24th को डॉक्टर तैमूर जाहिद होंगे। डॉक्टर मोहम्मद अली खालिद विल बी एक्सप्लेनिंग अबाउट द चैम्बर्स ऑफ आई बॉल ऑन 23rd of April at 9 p.m. ये आई वालों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और डॉक्टर तैमूर जो है वो प्रॉपर्टीज ऑफ डेंटल मटेरियल्स के बारे में बताएंगे ऑन 24th April at 4 p.m. ये डेंटिस्ट्री के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। डॉक्टर सैरिश नदीम, इनके अभी रोस्टर जैसे ही फाइनलाइज होते हैं, वी विल अपडेट अबाउट द डेट एंड टाइम एज वेल। ये पढ़ाएंगी आपको फेजेस ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। Books के लिए we will share the details inshallah. I hope this session have been helpful. Please do share your reviews about this whole session and this whole activity, and do ask your friends to join this whole free webinar week as well. And if you are interested in joining this whole platform for the preparation of FCPS Part 1, you are more than welcome to join us. Okay? Thank you so much for your time. I hope this session has been helpful for you. Jazakallah khair. Allah Hafiz.